Hello, 6th standard. This is the second chapter from your SS textbook, from a journey from primitive man to settled life. I think when I started the first chapter, I gave you an introduction about what is SS. और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्रिमिटिव मैन कौन था और किस तरह जो है फायर बना और व्हील आया, राइट? वी हैड डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स. So now let us discuss about what is the journey from primitive man to settled life. पहले तो primitive man कौन था? Primitive man मतलब we are talking about the human being, right? Primitive human being, yeah, people who lived at the old times, lakhs of years ago, right? Thousands and lakhs of years ago जो लोग रहते थे उनको हम primitive people बोलते हैं, primitive man बोलते हैं. And settled life, we are talking about our people, abhi, this generation, how the people have settled. Okay, so I am starting with the chapter. Jaibir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle. जयबीर जो था वो अपनी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर जा रहा था and he was going in train, right? So while he was sitting near the window, he saw all those things, trees dekha, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus and tractor he saw. So he asked his uncle, when did this transportation start? he asked his uncle, when did this matlab he's talking about the train, क्योंकि अभी तो वो ट्रेन में जा रहा था. तो he is asking that when did this transportation start in our country? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. तो उसके अंकल ने उसको जवाब दिया, he answered that train started in our country approximately 150 years back. 150 years पहले से हमारी ट्रेन जो है स्टार्ट हुई. और ट्रेन से पहले हमारी कंट्री में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन थे? बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, रिक्शाज, बस, ट्रैक्टर्स, ये सारे जो थे ये ट्रांसपोर्टेशन चलते थे. और ये बुलक कार्ट्स और कैमल कार्ट से पहले भी पता है क्या था? कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. मतलब जो पीपल जो थे, राइट, प्रिमिटिव लोग जो थे, दे यूज्ड टू वॉक, मतलब वो पैदल जाते थे. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाय वॉकिंग. वो लोग पैदल हर जगह जाते थे. फिर बुलक कार्ट्स आया, कैमल कार्ट्स आया, फिर स्लोली और ग्रेजुअली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव होने लगा. अब ये सारी चीजें उसके अंकल उसको बता रहे हैं. And train came in our country 150 years back. Among all these vehicles which you are seeing on road, the bullock cart is the oldest. अब जयबीर को उसके अंकल ने बताया कि ये सारा ट्रांसपोर्टेशन जो आप रोड पर देख रहे हो, which is the oldest transportation, bullock carts, right? Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation, which I told you right now. Before bullock cart, man के पास कोई भी transportation नहीं था. Man रोज कैसे जाता था? पैदल, मतलब walking by foot. ठीक है? He used to go from one place to another place on foot. मतलब वो पैदल जो है man जाता था. Primitive man, nomadic life. Now what is the meaning of primitive man? Primitive man matlab people who were living at very old time, matlab बहुत पहले, thousands of years old जो लोग रहते थे उनको हम primitive man कहते हैं. And they lived a nomadic life. और वो किस तरह की लाइफ जीते थे? nomadic. nomadic का मतलब क्या होता है? The people who moved from one place to another. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों की लाइफ कैसे है? सेटल्ड लाइफ है,
हम अपने पेरेंट्स के साथ पक्के घर में रहते हैं, राइट, और हम एक जगह सेटल हो गए हैं, सिंस सो मेनी इयर्स वी आर लिविंग, राइट, हमारा घर जो है इतने सालों से हम एक ही जगह पर रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वी गो ऑन मूविंग, आज हम यहाँ रहते हैं, कल हम कहीं और रहते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, इस तरह हम नहीं जाते, राइट। तो पहले जो थे प्रिमिटिव मैन जो था, उसकी लाइफ कैसे थी? नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम ये पैराग्राफ में, ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो मैन जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्यों मूव करता था, वाई द मैन वुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Primitive man means people of very old time. What is a primitive man? Primitive man का मतलब people of very old time. Approximately 20 lakh years ago. कितना पुराना? Approximately 20 lakhs years ago. Right? जो लोग रहते थे उनको अपन primitive man कहते हैं. He led a nomadic life. और उस समय लोग जो है कैसी लाइफ जीते थे? Nomadic life. What is the meaning of that? Spent his time by hunting, right? Nomadic life means they moved from one place to another. और उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? By hunting. वो एनिमल्स को हंट करते थे. This stage of humans is called hunter and gatherers. और ये जो primitive man जो था, उनको hunter और gatherers भी बोलते थे. What is the meaning of hunter और gatherers? या उस टाइम पर लोगों को hunter और gatherers क्यों बोलते थे? क्योंकि that time जो man जो था वो animals को hunt करता था and then he would eat, right? What would the man do? He would hunt and eat. और gatherers मतलब वो जो भी trees पे जो fruits होते थे, जो वेजिटेबल्स होती थी या जो भी रूट्स होती थी, उसको प्लक करके, उसको तोड़कर, उसको गैदर करके खाता था, राइट? सो दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड एज हंटर एंड गैदरर्स, हंटर एंड गैदरर. ही यूज्ड टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग, जो अभी मैंने आपको बताया. ही यूज्ड टू गैदर हिज फूड मतलब वो अपने फूड को कैसे कैसे लाता था? बाय हंट करके, एनिमल्स को हंट करता था, डियर, फिशेस एंड बर्ड्स को हंट कर कर, और अपने लिए फूड को वो गैदर करता था. अदर देन दिस दे ऑल्सो कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड. और फिर वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करता था, पेड़ पे से फ्रूट्स कलेक्ट करता था, पेड़ पे से रूट्स को कट करता था और फिर वो खाता था. It was not that easy. Sometimes wild animals attacked them. अब हंट करना कोई इजी नहीं होता है ना? क्योंकि आप किसको हंट कर रहे हो? और वो उस समय प्रिमिटिव मैन कहाँ पर रहता था? जंगल में रहता था, है ना? राइट. तो इट इज नॉट इजी टू हंट, राइट? तो वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो अटैक भी करते थे. मोर ओवर some of the animals were fast in running. wild animals, कुछ wild animals तो बहुत फास्ट होते हैं, राइट, रन करने में. तो उनको वो लोग पकड़ लेते थे और किल कर देते थे, मैन को भी किल कर लेते थे. सो इट वाज नॉट इजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम. कई बार तो प्रिमिटिव मैन को भी वो अटैक करके किल कर देते थे, और कई बार एनिमल्स इतना तेज भागता था कि प्रिमिटिव मैन जो है उसको हंट ही नहीं कर पाता था, राइट? Thus primitive man used to wander from one place to another. अब नेचुरली है, अगर वो हंट नहीं कर पाएगा तो हाउ विल वी ईट, राइट? क्योंकि वो क्या करता था? ही यूज्ड टू ईट द फ्लैश ऑफ एन एनिमल, राइट? वो हंट कर कर खाते थे. तो अब अगर एनिमल को वो हंट नहीं करेगा तो प्रिमिटिव मैन क्या खाएगा? सो दैट इज व्हाई वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू वॉन्डर. वॉन्डर मतलब दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. फिर जब एक जगह से दूसरी जगह पर इतना सारा मूवमेंट होता था, राइट, तो क्या होने लगा? स्लोली और ग्रेजुअली प्रिमिटिव मैन को ये समझ में आ गया कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन से रूट्स को खाना चाहिए, क्योंकि सारे फ्रूट्स और सारी रूट्स जो होती हैं
all the trees are not you know all the trees roots जो होती हैं trees की वो सब हम खा नहीं सकते, कुछ कुछ trees poisonous भी होते हैं, है ना. तो slowly और gradually primitive man को ये समझ में आ गया which fruit to eat and which root to eat because many of them were poisonous. Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of for them. अब प्रिमिटिव मैन को ये पता चल गया कि डियर शीप गोट जो है वो इजीली हम हंट कर सकते हैं, उसका हम शिकार कर सकते हैं. सो दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डियर शीप और गोट को हंट करने के लिए. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. अब slowly और gradually उसको ये भी पता चल गया primitive man को कि water is very important. It is a very essential part of life, है ना. तो they started settling down जहाँ पर sources of water हो, जहाँ पर rivers वगैरह हो, वहाँ पर वो लोग जाकर अपना टेंट जो है वो लगा देते थे. मतलब they used to go and settle over there. You understood? Now, places of human habitation of primitive man in India. अब इंडिया में primitive man कहाँ पर रह रहा था? Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. अब हमारी कंट्री में हमें archaeologists, anthropologists और historians जो है उन्होंने हमें बताया कि अपनी कंट्री में भी बहुत सारी places हैं जहाँ पर primitive man रहता था. Along with that, they have also found information about implements used by them. अब वो कहाँ रहते थे वो तो पता है, लेकिन साथ साथ में वो क्या यूज करते थे, मतलब व्हाट वर द टूल्स, कौन से टूल्स यूज करते थे, राइट, वो भी हमें उन्होंने बताया है. दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन्स, राइट. अभी प्रिमिटिव मैन जो था वो क्या करता था, उसके वेपन्स जो होते थे वो कौन से चीज के बने हुए होते थे, मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड्स. वुड से भी पहले स्टोन्स और फिर वुड क्योंकि उनको ट्रीज से वुड मिल जाता. कैन यू सी दिस पिक्चर? यू कैन सी द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टोन्स, है ना. अब वो स्टोन से पता है ये स्टोन, क्योंकि जब वो हंट करते थे तो उनके पास कुछ और था नहीं, वो यही स्टोन्स को इतना शार्प बनाते थे और वो निशाना लगाकर एनिमल को मारते थे स्टोन, और एनिमल को अटैक करते थे. इन दिस वे दे वुड हंट, है ना. वो एकदम पॉइंटी वाला स्टोन से जो है उनको मारते थे. सो वो लोग क्या करते थे, स्टोन्स से हंट करते थे. वही स्टोन से जो है वो ट्रीज की रूट्स को कट करते थे, बिकॉज उनके पास और तो कुछ वेपन था नहीं, राइट. तो विथ ऑल दीज थिंग्स they used to gather things for themselves. Then they said sometimes they even use implements made up of bones. अब कई बार तो क्या होता था, वो बोन्स, क्योंकि वो लोग हंट करते थे ना वाइल्ड एनिमल्स को, तो वो ये सारी उनके जो बोन्स होते थे, एनिमल्स के जो बोन्स होते थे, उनमें से भी कुछ टूल्स बनाते थे. Since the lives of hunter and gatherers and wanderers are associated with stone technology, this time is called as Paleolithic, right? अब उस टाइम पे जो hunter gatherers थे, जो wanderers जो थे, जो लोग जो थे, primitive man, they used stone technology. मतलब वो अपना वो stone से तरह तरह के shapes बनाकर और अपना they would use all these tools. So that is why that time is called as Paleolithic, है ना. This stone shown in figure 2.1 were used to cut vegetations. Can you see this? They used to, जैसे हम लोग knife use करते हैं ना vegetables को cut करने के लिए, right? या the farmers जो है वो अपने खुद के tools जो है वो use करते हैं. Primitive man जो था ये इस तरह के stones use करता था, and to scrap the skin of the animals. और जो animals जिनको वो hunt करते थे उनकी स्किन निकालने के लिए वो लोग ये एनिमल्स, ये स्टोन्स को यूज करते थे. Primitive man used to peel the tree
skin the animals to cover his body. अब वो प्रिमिटिव मैन के जो क्या करता था, वो जो ट्रीज की जो बाक होती थी, रूट्स होती थी, राइट, उनको पील करता था. स्किन जो होती थी ट्रीज की, उसको जो है पील करता था. एनिमल्स की स्किन जो जिनको वो लोग ने हंट किया है, राइट, वो एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी कवर करता था. मतलब वो जो ट्री की स्किन होता था और जो एनिमल्स का स्किन होता था, उससे वो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे, बिकॉज दे दैट टाइम डिड नॉट हैव क्लोथ्स, राइट. मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया. अब ये देखो, जैसे पैलियोलिथिक प्लेस कौन सी है, ये कैन यू सी दिस रेड कलर के ट्रायंगल. नर्मदा रिवर पे भी वहां पर प्रिमिटिव लोग रहते थे. कुरुमुल केव्स में वहां पर जो है रहते थे. कि दिस मैप शोज कि कहाँ पर लोग रहते थे, राइट. अब they preferred to stay in good and large places where stones, wood and water were found. अब वो जो primitive man जो था, they love to stay where stones ज्यादा होते हैं, woods ज्यादा होते हैं, water जो है वो available होता था, वहां पर they would prefer to stay. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उनको स्टोन्स चाहिए हंट करने के लिए, फ्रूट्स को गैदर करने के लिए, रूट्स को कट करने के लिए, राइट, क्योंकि स्टोन उनका वेपन होता था, टूल्स थे. तो जहां पर स्टोन्स ज्यादा होते थे, दे वांटेड टू स्टे देयर, दे वांटेड टू लिव देयर, राइट. वाटर जहां पर अवेलेबल है, क्योंकि वाटर वाज एसेंशियल, राइट. दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. और प्रिमिटिव मैन जो था वो कहाँ पर रहता था? नेचुरल केव्स. आई थिंक मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर करवाया था. दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जो प्रिमिटिव मैन था उसके पास होम नहीं था. दे यूज्ड टू लिव इन द केव्स, राइट, दे यूज्ड टू लिव इन द caves. Several such places have been found in Vindhya mountains in central India. Such type of places have also been found in the region around Narmada River. Bhimbetka, that is in MP, has been found, which was an excellent place for human habitation. अब नर्मदा रिवर के यहाँ पर जो है कुछ प्लेसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि केव्स बनी हुई हैं, राइट. तो ह्यूमन हैबिटेशन वाज देयर. विंध्या माउंटेन्स जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ पर कुछ केव्स बनी हुई हैं, तो उससे हमें पता चलता है, राइट. भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जो केव्स है, दैट शोज कि पीपल लिव्ड ओवर देयर, which was an excellent place for human habitation. In its caves, near about 500 images of birds, deer, wooden spears, trees, human, etc., drawn by the primitive man have been found. अब आप बोलोगे मैम केव्स है, दैट डज नॉट मीन कि ह्यूमन बीइंग रहता था, प्रिमिटिव मैन रहते थे. लेकिन उस केव्स में हमको बहुत सारी इमेजेस मिली हैं. मोर देन 500 images have been found. वो images of birds, deer, wooden, spears, trees, human beings, right, की drawings, images मिली हैं, जिससे पता चलता है कि primitive man was staying over there, which are drawn with the help of natural colors. Natural colors कौन से होते हैं? ट्रीज की लीव्स वगैरह, बार्क्स वगैरह को यूज करके जो कलर्स बनाते हैं उसको अपन नेचुरल कलर्स बोलते हैं. अब केव ऑफ भीमबटका. डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस. वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फायर कैसे हुआ था, डिस्कवरी, फायर की जब डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ, और व्हील्स की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ. Ruins of ashes found in the caves of primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire, right? अब वो जो ashes, ये जो कर्नूल की जो साउथ इंडिया में जो caves हैं, right, उसमें हमको ashes भी मिली हैं, राइट. तो वो ashes यानी ashes अगर मिली है तो ashes का मतलब क्या होता है? फायर से ही ashes होती हैं, है ना. तो दैट मीन्स कि तब भी लोग जो है वो क्या करते थे, वो फायर यूज करते थे. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. Approximately 11,000 years ago, तब तक human being ने fire use करना start कर दिया था. Use of fire had revolutionized
their life because with the help of it they cook the meat and ate, right? अब जब मैंने I told you that कि जब fire उन्होंने discover किया, so that was a big revolution in their life. Why revolution? Because वो जब fire invent किया उन्होंने, तो उनसे उन्हें पता चला कि this fire, right, we can cook, right, क्योंकि वो लोग hunt करके खाते थे, है ना? तो उससे उनको ये पता चला कि हम जो है ये मीट जो है, रॉ मीट जो है उसको हम कुक करके खा सकते हैं, और ये फ्रूट्स और रूट्स जो हम गैदर करते हैं उसको भी हम कुक करके खा सकते हैं. अदर देन फायर, व्हील ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज देयर लाइफ. और जब व्हील डिस्कवर हुआ तो वो भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ उनकी लाइफ में. दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम द ट्री ट्रंक एंड थिक वुड, राइट? आई टोल्ड यू कैसे लॉग ऑफ वुड वो लोग ने एक बार माउंटेन से गिराया और कैसे बोट बनाया, राइट? सो इन दिस वे दे लर्न हाउ टू मेक व्हील फ्रॉम अ ट्री ट्रंक, और थिक वुड से कैसे जो है व्हील बनाया जाता है और वो व्हील को कैसे यूज किया जाता है. Changing environment. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, that is herbivorous, like deer and sheep, goat also increased. Primitive man certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. अब अराउंड 12,000 years ago क्या हुआ? स्लोली और ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेयर था वो क्या होने लगा? इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा. अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो वेजिटेशन हुआ, ग्रास बढ़ा, है ना? अब वो वेजिटेशन ग्रो हुआ, वेजिटेशन और ग्रास जो है वो इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली वेजिटेशन और ग्रास के जो एनिमल्स है, जिसको अपन बोलते हैं हर्बिवरस एनिमल्स, एनिमल्स विच फीड ऑन द vegetation and grass, है ना? like deer and sheep and goat. अब primitive man तो ये deer और sheep और goat को ही hunt करता था. Yes, we studied right now in the previous paragraph. तो ये herbivorous animals increase होने लगे. जब ये एनिमल्स इंक्रीज होने लगे तो डेफिनेटली ऑब्वियसली क्या हुआ? प्रिमिटिव मैन के लिए बेनिफिट हो गया, क्योंकि प्रिमिटिव मैन तो इन्हीं का ही हंट करता था, ठीक है? तो दे स्टार्टेड स्टडिंग. अब उन लोगों ने है ना ये डियर, शीप, गोट, ये जो हर्बिवरस एनिमल्स थे, इनका बिहेवियर स्टडी करने लगे कि वो कहाँ पर रहते हैं, कौन सी चीज उनको ज्यादा चाहिए, कि ग्रास और ये जो है वहां पर वो लोग ज्यादा टाइम रहते हैं तो हम उनको प्रॉपरली हंट कर सकते हैं. मतलब दे स्टार्टेड स्टडिंग द एनिमल्स बिहेवियर. अब जब उन्होंने एनिमल बिहेवियर दे स्टार्टेड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, तो डेफिनेटली प्रिमिटिव मैन का भी माइंड जो है डेवलप होने लगा. हम कभी भी किसी चीज पर देखो सोचते हैं एंड वी स्टार्ट हैविंग द आइडियाज, तो उससे क्या होता है? हमारा माइंड जो है वो क्या होता है? डेवलप होता है, राइट? सो ये प्रिमिटिव मैन भी जो था, when they started using their brains, when they started using their minds, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा. They came in contact with grass, trees, vegetations as well as wheat, barley and other grains due to the climate change. अब slowly और gradually, मतलब हम लोग है ना क्रॉप्स ग्रो करने लगे. वो प्रिमिटिव मैन जो था वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे, जैसे वीट है, बाली है, दूसरे ग्रेन्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने लगा. वो क्लाइमेट जो था, टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, तो दैट वाज गुड फॉर ऑल दीज क्रॉप्स. वीट और बाली के लिए अच्छा होने लगा. तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज वो वीट और बाली और दूसरे ग्रेन्स ग्रो करने लग गए. नाउ बाय दैट टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स. वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स. अब उन लोगों ने क्योंकि ये ग्रेन्स यूज करने लग गए, ग्रो करने लग गए, तो उन लोगों ने ग्रेन्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया. बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट, स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. अब उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि ये वीट और बाली और ये सब ग्रेन्स जो हैं ये ग्रो कैसे होते हैं, right? Again they started using their brains, right? They started thinking, they started developing lot many ideas.
तो स्लोली और ग्रेजुअली एग्रीकल्चर डेवलप हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? फार्मिंग डेवलप हुआ हमारी कंट्री में, एंड दस फार्मिंग स्टार्टेड इन आवर कंट्री. People started using stones to grow grains. They started growing grains near the banks of the river and constructed their houses made up of mud, thatch and other materials in the nearby areas. अब क्योंकि अब उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट? अब फार्मिंग तो कहाँ पर होगा? जहाँ पर वाटर होगा, राइट? अब जहाँ पर भी फार्मिंग होगा वहां पर ही जो है मैन क्या करेगा? वहीं पर ही सेटल हो जाएगा ना. यस, आपके पापा का जहाँ पर जॉब होता है, जहाँ पर बिजनेस होता है, तो पापा वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं, उसी प्लेस पे ही, है ना? उसी सिटी में, उसी एरिया में जो है सेटल हो जाते हैं. तो उसी तरह ये जो प्रिमिटिव मैन जो अभी हमने पढ़ा प्रीवियस पैराग्राफ में कि वो नोमैडिक था, मतलब दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? उनके पास कोई पक्का घर नहीं था, राइट? तो अब क्योंकि वो लोग फार्मिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया कहाँ पर? नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर, राइट? अब जैसे ही उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें एक अपना ऑक्यूपेशन मिल गया. क्या मिल गया? ऑक्यूपेशन मिल गया. अब क्योंकि ऑक्यूपेशन मिल गया तो दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस. तो वो अपना घर बनाने लग गए. उन्होंने घर कैसा बनाया? मड का बनाया, थैच का बनाया, दूसरा कोई मटेरियल यूज करके बनाया, राइट? ये सारा मटेरियल यूज किया उन्होंने अपना स्लोली और ग्रेजुअली जो है इंस्टेड ऑफ द केव्स वो अपना घर बनाने लग गए. एज अ रिजल्ट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड. अब क्योंकि घर बना लिया, दे मेड होम फॉर देमसेल्व्स, तो ये जो नोमैडिक लाइफ थी, नोमैडिक लाइफ मैंने क्या बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमैडिक लाइफ? मैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? कोई भी एक जगह पर रुकता नहीं था, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता था. अब ये जो नोमैडिक लाइफ जो थी दैट केम टू एन एंड, और जो मैन जो है वो सेटल होने लगा. दे स्टार्टेड सेटलिंग एट वन प्लेस. द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ दिस ऑफ अ सेटल लाइफ वाज अ डॉग, राइट? अब ये मैन का पता है पहला फर्स्ट कंपेनियन कौन था जिसको आप कंपेनियन बोलो या फ्रेंड बोलो? when he started settling was a dog. Beside, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pigs, etc. Gradually, they started adjusting with them too. और slowly और gradually man जो है वो शिप, गोट, काउ, बफेलो, पिग्स ये सब एनिमल्स के साथ भी एडजस्ट होने लगा. These animals protected them from wild animals. Thus they associated with animal husbandry. इसीलिए वो जो प्रिमिटिव मैन था अब वो सेटल होने लगा तो उन्होंने अपने फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करने लगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? दे स्टार्टेड कीपिंग different types of animals in their farms, जैसे sheep, goat, cow, buffalo, right? ये सब एक साथ उनके फार्म में रहते थे along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. अब settled life में क्या हुआ? As now we have settled, early life and pastoral activities transform primitive man's life into a settled life. जो अभी हमने पढ़ा, slowly और gradually ये जो primitive man था वो क्या होने लगा? वो settled होने लग गया. We know that agriculture land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. अब क्योंकि वो जो प्रिमिटिव मैन था उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया. अब फार्मिंग में क्या होता है? व्हेन यू ग्रो द क्रॉप्स, वो ऐसा नहीं होता है कि टुडे यू हैव सोन सम सीड्स और कल जो है वेजिटेबल्स ग्रो हो जाएंगी और फ्रूट्स ग्रो हो जाएंगी. ऐसा नहीं होता है. क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, राइट? बिकॉज यू हैव टू टेक केयर. पहले सीड्स को आपको सो करना पड़ता है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, उसको जो है फर्टाइल बनाना पड़ता है सॉइल को, उसको पानी देना पड़ता है. देन स्लोली और ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो सीड्स जो है वो क्रॉप्स में मतलब फिर वो आप हार्वेस्ट कर सकते हो. इट टेक्स टाइम,
राइट। अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया प्रिमिटिव मैन ने, तो क्या हुआ, अब उसकी टेक केयर करने के लिए उस प्लेस पे तो रहना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। इट नीड्स वाटर, अब वो क्रॉप्स को वाटर भी चाहिए, एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड, जो अभी मैंने आपको बताया। जब क्रॉप्स जो है वो मतलब पूरा उग जाता है, राइट नाउ इट इज टाइम कि अब हमें जो है वो क्रॉप्स जो है पूरा वेजिटेबल और इसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, तो हमको हार्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। व्हेन ग्रेन्स आर रेडी, वो ग्रेन्स पूरा जो है रेडी हो गया तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ इन इंडिया। अब क्योंकि इट टेक्स टाइम, तो स्लोली और ग्रेजुअली उस क्रॉप्स की, उस ग्रेन की टेक केयर करने के लिए प्रिमिटिव मैन सेटल होने लगा एट वन प्लेस। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्दन पॉट्स। अब फार्मिंग तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अगर फार्मिंग किया और ग्रेन्स जो है की फार्मिंग की, तो वो ग्रेन्स रखेंगे कहाँ पर? उनके पास कुछ तो वेसल्स होने चाहिए ना, बर्तन होने चाहिए, राइट। अगर आप कोई भी ग्रेन्स लेकर आते हो, मम्मी वीट लेकर आती है, राइस लेकर आती है, बार्ली लेकर आती है, तो मम्मा के पास वेसल्स होते हैं ना, मम्मा के पास यू नो डब्बे होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें मम्मा रखती है, राइट। तो उसी तरह ही कि अब अगर ये ग्रेन्स का टाइम, जब हार्वेस्ट का टाइम आया और अब हम ग्रेन्स को जो है काटेंगे, तो ये ग्रेन्स को काट कर रखेंगे कहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। तो तब तक प्रिमिटिव मैन ने क्या किया, अर्दन पॉट्स बनाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्दन? मिट्टी के बर्तन। क्या बनाए? मिट्टी के बर्तन। और वो जो मिट्टी के यूटेंसिल्स बनाए, दे स्टार्टेड यूजिंग टू स्टोर द ग्रेन्स। इसको क्या करने लगे, वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वो अर्दन पॉट्स बनाना स्टार्ट किए। As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes and shelter. अब slowly और gradually वो wandering life जो थी, it started changing. तो फिर जो वो लोग जो थे primitive man, उन्होंने अपने अपनी फूड हैबिट्स चेंज की। फूड हैबिट्स कैसे चेंज की? वो अब एकदम फ्लैश ऑफ द मीट नहीं खाते थे, उन लोगों ने ग्रेन्स खाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्लोथ्स पहनने, स्लोली और ग्रेजुअली दे स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स। उन्होंने शेल्टर मतलब अपना होम बनाया। along with wheat, barley, meat, they started eating fish. फिर उन्होंने फिश जो है स्टार्ट किया खाना। फ्रूट्स जो है उनको सेटलमेंट्स के टाइम पर नियर मिलते थे, दे स्टार्टेड ईटिंग दैट। अब वो स्लोली और ग्रेजुअली घर में रहने लगे। दे मेड हाउसेज मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर मटेरियल, राइट। एंड ही डिड एग्रीकल्चर, और फिर एग्रीकल्चर भी जो है स्टार्ट किया। He made farming implements of stone which include spade. अब वो stone से किस चीज में आए? spade बनाया, chisel बनाया, sickle बनाया, मतलब ये सारे tools होते हैं जो farming में हम use करते हैं। The following table shows us the places of India where grains, shelter, weapons and remains of animals have been found. अब हमें कैसे पता चलता है? ये देखो, वीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो है हमें मेहरगढ़, मेहरगढ़ अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बिकॉज पहले तो पाकिस्तान भी हमारी कंट्री में ही था, है ना। तो वहां से हमें पता चलता है कि जो प्रिमिटिव पीपल थे वो, इन्होंने वीट, बार्ली, शीप, गोट जो है मतलब इस तरह के ग्रेन्स और वेपन्स और एनिमल्स जो है इम्प्लीमेंट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स ये सब बनाए। फिर राइस और बोन्स ऑफ एनिमल्स उनको कहाँ से मिला? कोलधीवा, यूपी से उन्हें पता चला। फिर राइस, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, महागढ़, यूपी से उन्हें पता चला, ये जो रिमेन्स उसको मिले हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स और राइनो के बारे में लांगंज एंड गुजरात, उधर से पता चला। व्हीट, लेंटिल, डॉग्स, पिट हाउसेस, उनको बुर्जुम एंड गुफक्राल, कश्मीर से पता चला। बफेलो बुल इम्प्लीमेंट्स उन्हें बिहार से पता चला। Now we get information about their human settlements and cattle rearing from places like Burchom, Kukral, Hurangi, Merghar, Langnaj, Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists.
From places such as Mehrgarh and Inamgaon, we even get information about their houses and farming. अब ये देखो, कैन यू सी दिस पिक्चर? अभी इस तरह की पिक्चर से हमें पता चलता है कि यस, इस तरह के घर वो लोग प्रिमिटिव मैन जो है बनाता था. They used to grow grains like barley and bajra. Sharp stone implements have been found from places like मेहरगढ़. मतलब मेहरगढ़ से हमें sharp stones के जो tools हैं वो भी मिलते हैं, right? This might have been used for farming. Mehrgarh may be considered to be the oldest village of ancient India. You see Mehrgarh in the map. Farming of barley and wheat started from there. तो ये जो हम grains खाते हैं ना, barley और wheat, ये सबसे पहले कहाँ पर ग्रो स्टार्ट हुआ? Where? In Mehrgarh. It was an oldest village. They reared sheep and goat. They did farming. और फिर एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने ग्रेन्स को स्टोर करना भी स्टार्ट कर दिया. बोन्स ऑफ एनिमल्स में ऑल्सो हैव बीन फाउंड हियर. They lived in a rectangular house. Small barns have also been found in these houses. According to the evidence, they honored the dead by burying them. अब उनको जो एविडेंस मिले उससे हमें ये भी पता चलता है कि इफ एनी एनिमल और इफ एनी मैन दे डाइड, तो उनको बरी भी करते थे. बरी यानी नीचे दफना देते थे अर्थ में. Many such evidence have been found here. Evidence have been found at one places that goat was also buried along with man. अगर एनिमल की भी डेथ हो जाए या मैन की भी, they all would bury them. This suggests their belief that there is life after death also. अब क्या होता था कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग की भी डेथ होती थी ना, तो उसके साथ वो लोग एनिमल्स को या कोई टूल्स वगैरह वेपन्स को, उन सबको भी बरी डाल देते थे, मतलब बरी कर देते थे, क्योंकि दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, कि अगर हम वापस से अगर बॉर्न होंगे तो द पर्सन हु हैज डाइड शुड बी बॉर्न विथ ऑल दीज थिंग्स, मतलब उसको और कभी दूसरी बार कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए. इन द सेम वे अ प्लेस नेम्ड Inamgaon has also been found in Maharashtra, from where the remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle, and did farming of bajra and barley. Right? In this way, primitive man जो था वो slowly और gradually settle होने लगा.